Most Honorable CM of Divasa Autonomous Council, Shri Devalal Gorosaji, our today's chief guest. Guest of honor, Honorable Assam Cabinet Minister, Government of Assam, Srimati Nandita Gorosaji. Honorable EM of Education Department, Shri Donphanal Thaksanji. Honorable EM of Medical Department, Shri Samuel Chamsanji, our guest of honor. Respected Inspector of Schools, Shri R. Pompiji, Srimati Purabi Punglo from DIPRO, dear teachers, students, and all my fellow mates present here today, it is my great pleasure to welcome you all. The next, last but not the least on the dais, we have right after the Jatiya Sangeet, we'd also be paying condolence and observing 1 minute of silence for the departed souls of the retired teachers. Condolence and observing 1 minute of silence for the departed souls of expired teachers during the year 6th September 2023 to 5th September 2024. Council and Honorable Chief Guest of today's Teachers' Day Selection Program, respected headmasters, principals, and teachers, and my students. At the very outset of my speech, I take this privilege to wish you all a very happy Teachers' Day. From Purana Maidam LP School. From Lower Malpai LP School. And to present this certificate, may I request Srimati Lalita. This certificate, may I request our respected principal. Presenting certificates to the next we have Sri Jatindranath Saikia, the retired assistant teacher of Riley Eddie School. Chandra Kapila, the retired Eddie School.
of Satypai MA School. The next. Last but not the least, we have Srimati Kalpana Paul, the retired Hindi teacher of Team gets present here and dear students. So here the people of Dima Hassan joyfully celebrating the 63rd National Teachers Day on this prestigious day of the 5th September with the credit and to bestow upon you this humble address of honor. Dear sir, after having a very good educational upbringing, you had served the nation by working as a teacher. You carried on this noble profession with the auspicious starting. On 1st August 1987, you joined your service at Thanalambra MA School as assistant teacher. On 16th of August 2016, you were promoted and transferred to Dehangi MA School as headmaster and later redesignated as assistant headmaster after amalgamations with Dehangi High School. Teachers, a very happy Teachers' Day. We have gathered here to honor and acknowledge our teachers' hard work and dedication who have played a vital role in shaping our minds and future. But before we commence the celebration, I would like to say a few words on why do we celebrate Teachers' Day and why it is important. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a distinguished scholar and an excellent teacher. He was so much popular among his students for the love he had for the students that he was literally revered. Once while fact that we the students of the best to reach teach us valuable lessons in life and in molding us. Starting from mathematics teacher. The next I would like to request Madam Adunika Khersa, Secretary District Academic Council, to speak a few words. A very warm afternoon to everyone seated here. Today being Teachers' Day, I on behalf of the District Academic Council, with all the teachers gathered here, I wish them a very happy Teachers' Day. As the line goes, a good education can change anyone and a good teacher can change everything. It is indeed true that a teacher can create methods to spark ideas and dreams. They are and have been instrumental in shaping young minds and guiding them on the path to success. Today is a day to acknowledge and appreciate our teachers' hard work and patience. The District Academic Council, Dima Hassan, is rather indebted to the efforts of energetic teachers who always came and comes up as master trainers, expert teachers, question setters, moderators, translators, and academic related support, which is immense and wonderful. From these platforms, we thank and appreciate you all, and of course, we look forward to your positive responses and suggestions in the future days to come. Thank you so much, ma'am. May I now request our Honorable EM of the Mahasa Autonomous Council, Shri Donpainon Thausenji, to speak a few words on today's event. Mahasa Autonomous Council के CEM आदरणीय डेवलप गुरु साहब जी, मंच पर विराजमान असम सरकार के मंत्री माननीय नंदिता गुरु साहब जी, ग्रुप में आज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बहुत अच्छा बात है और साथ में ये कहीं ना कहीं ये शिक्षक के जरिए ही जो आदमी का सोच विचार आगे क्या होना है उसी के एक भगवान के रूप में हम लोग को आगे आने वाला समय में क्या बनना है यही हम लोग को सिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो जीवन में स्टूडेंट्स के जीवन में जो आगे का जो लक्ष्य तय करने में यही शिक्षक के जरिए आगे आने वाला समय में कौन सा दिशा जाना है, कौन सा अपना जीवन को लेके जाना है, यही शिक्षा ही हम लोग को स्टूडेंट लाइफ को जीवन में हम लोग को यही चीज़ हम लोग को आगे का जो दिशा तय करने में बहुत योगदान जो विचार करने में बहुत योगदान यही के प्राप्त होता है। और साथ में हम लोग का एक तरफ से तो नौजवान को एक देश का मेरुदंड बोलते हैं और वही जो
जो बैकबोन है वही बैकबोन को सही तरह से आगे जाने के लिए ये शिक्षक ही उसका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक आगे पहले से जबकि इंडिया में भारत में जो आगे का जो समय था कुल जो शिक्षा पद्धति जो पहले का जो शिक्षा पद्धति आश्रम का समय था और उसके बाद में जो बहुत बड़ा इंडिया में भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रहा करता था, जहाँ पे जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे, और बाद में साथ में तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे 10-10 हज़ार जो स्टूडेंट वहाँ पर रह करके जो पढ़ने का समय वहाँ उसी समय में देश विदेश से आ करके इंडिया में रहने करके यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके चला जाता था। तो वही युग कहीं ना कहीं हम लोग को वो जो स्वर्णिम युग हम लोग को फिर आने वाला समय में आएंगे ऐसे आशा रखता है। और इन सब जो भारत का जो संस्कृति और भारत का जो शिक्षक जो देश विदेश से जो 10,000 स्टूडेंट एक विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे, उन सब जो हम लोग का है जो शिक्षक है जो हम लोग का है यहाँ पे जो ऐसे अच्छा एजुकेशन उसी समय में था जो आज कहीं ना कहीं आदि उसी समय में क्या जो वही जो वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में रहा करता था वो कहीं ना कहीं हम लोग पहले से जो थोड़ा कुछ पीछे है, लेकिन आशा रखता है कि आने वाला समय में इन्हीं सब शिक्षक के जरिए आने वाला समय में जरूर हम लोग ये जो मोदी जी का लीडरशिप में मोदी जी का और हेमंत बिश्व शर्मा जी और जैसे कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आदरणीय डेवलप कॉर्पोरेशन जी का लीडरशिप में जो देश का जो आगे लेके जा रहा है, देश के विकास के लिए जो नॉन स्टॉप जो टायरलेस जो काम कर रहा है उसको इसी के जरिए हम लोग आगे जरूर जो एक समय में जो तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जैसे हम लोग का यहाँ जो शिक्षा यहाँ का जो शिक्षा पद्धति ये जो वर्ल्ड क्लास हम लोग का रिकॉग्नाइज हुआ किया करता था, आगे आने वाला समय में जरूर ये एक दिन कामयाब होगा। Good afternoon and a very happy Teachers' Day to all of you present here. Respected dignitaries sitting on the dais, and my pranam to our the best teacher that India has seen, Sarvapalli Radhakrishnan. It's a very proud moment for me to stand in front of all of you, because many of you sitting on the dais as well as in the audience have been my students. This is the real reward that as a teacher we get. I cannot express in words the feeling that a teacher gets when his or her student reaches such heights. And today we are seeing the height here and here. We get our salary, we need it because we have to look after our households, but the love and the kind of reverence that we get from our students is unbelievable. And coming from this town, I think it is even more special. The kind of recognition that a teacher gets, I don't think anyone else gets. I beg your pardon, all of you, but I feel that a teacher gets the highest regard. And as many of you have said, teacher builds the nation, that goes without saying, but my advice also is one advice is there, as a teacher, our students, they are our children, we are their guardians. So we have to be extra careful when we are in the classrooms with them. Forget about all your personal problems, all your personal feelings, and when you stand in front of them as a teacher, you become a kind of a guru for them. And guru in our religion is a very, very reverent word. We might have many degrees, we might have many things, but
with the students, we have to come down to their level and learn something from them also. As in my 3 decades of being a teacher in Haflong Government College, I have learned a lot from my students also. I don't know how much I was able to give them, but I have learned a lot, and with that feeling that my learning will continue with my students who might not be in my classroom, but they are there with me in my life. I thank once again all the organizers for giving me this recognition. Thank you. And it's been a wonderful journey for me always to be on the Teachers' Day amongst you all. To begin with, it's every time that we come for the Teachers' Day, there's something done within from our heart. And today it's also the birthday of Mother Teresa, and Mother Teresa's quotes are always high. We keep that in with always ourselves. She always quotes. If you go and say Mother Teresa's quote, you will find numerous numbers of quotes which you can fill and do what you want to do. I will suggest the young children, how many of you are with the quotes nowadays, whether you see or you don't see with the mobiles also, but always my suggestion to the younger generation is always follow the quotes of the great personalities that you will feel yourself, that you want to do yourself something for the better for the society. My respect to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. On his birthday, we are celebrating Teachers' Day, as we all know. And on this special occasion of today, I found it very good that there are so many schools that have participated here, students as well as teachers. A special mention may be made of NKD Daulagupu LP School. Usually, always it is being said, like there are some private schools will always take the limelight, but then the government schools are always there, as well as the LP schools which have come up with a very good performance. These are some of the things to be really appreciated in a program like this, that LP schools can also come forward and perform a performance. Keeping that in mind, the other schools from the students who have participated in, congratulations to you all that you have participated. I don't want to take much of your time because you must have been whole day celebrating in the school, as well as you have come over here. And this is a celebration where all teachers and all the schools and all the students are really waiting for. I can very assure you that none of the celebrations are as grand as the Teachers' Day celebration. Even if it is not on the 5th of September, schools starting celebration from the 3rd of September, 4th of September and 5th of September. So there is, every day is a different day, but at the same time for Teachers' Day, there is always a warmth among the students. And this is such a profession, like what Madam Renu Gupta had mentioned. This is one of the highest profession, highest regard that you all get a respect. And it's very true, once you don't know how to respect your teachers, there is a dearth of knowledge within you. That is what I feel. Any teacher is supposed to be respected, either it's from a lower class and till the upper classes. So in the face of a student, we get so many teachers in our life in the same school itself only. For the nursery, we have different teachers. For LP, we have different. For high school, we have different. And so on and so forth. If we go to college, we have different. The whole education system of ours, which is a part of our life, half of our life finishes during our student career. And in this student career only, we get so many teachers within us who can give us one or the other, and they become an inspiration for us. So, and the next thing that we ask our students, what do you want to be, or what is your aim in life? Many of the students raise up their hand and then they said, I want to become a teacher. So this is a profession that we do listen, and then we do get to know from the students also they really want to become a teacher. And this is a respect from my side to all the teachers. Because I have been a teacher, I understand what the respect of a teacher is, and what the respect that I am getting is now in the term of being a teacher. So on this very special day, to all the teachers who have already retired, a time comes when you start working, and then you have to understand there will be a time where you have to retire. So in a small portion of our life, when you keep on working for 30 years,
as the normal curriculum of it is that we go for the service for the 30 years. And in this 30 years of the service, that you must have given so many education to so many young students, and then they must have shaped their lives in different forms. To all the teachers who have come from LP schools that you have already retired, you all have been the beacon of a light for the LP schools. That is why our students are here. To all the teachers from the ME section as well as from the high school section, to all the government school sections, that you have given a respect to what the students should be, is what you all have culminated. Besides that, from my side, since last year we started giving an award to the teachers also, those who are from the private institutions and those who have already retired also. So that is why there was another form of special thanks to all the achievers from the teachers from the private schools also, as well as from the government section also. So my humble request to all, it's been a wonderful event for me to be here amongst you all, and then to wish you, and then to see what your problems can be solved on. Honorable CM sir is here with us, Education EM is also with here, the PST is also with here, and the Joint Secretary of the Education Department is also with here. एक दो बात आप लोगों का शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा. हमारा आज का टीचर्स डे में ये बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बोलने से आप लोगों का थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा. हमारा काउंसिल का जैसे स्थापित हुआ था इन द ईयर 1952, वी हैड द terms of education in terms of our council, and that was an LP school education. Lower primary education is always under the administrative head of the council. There was always a norm कि हमारा एक norm होता था कि there was to be a sanction post which these normal teachers used to be going in the term of a non-plan. We used to use the work, and then they used to get promoted in the sanction post of the government which has been there. This has been continuing since long, but at the same time the government of Assam is also of the view that because of all the curriculum that has come up now, किसी को अगर टीचर बनना है तो अभी बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ऐसे बोल के लिखा है. आजकल लिखा है कि you have to become a TET, you have to become a B.Ed, you have to fulfill all the criteria to become a teacher, then only you will be able to get the salary which is being given by the government. So in that case, since last year, as there was a term from the government of Assam that we will not be able to entertain the sanction post of the council's employees, that is why it has been stopped. लेकिन मेरा तरफ से और काउंसिल का तरफ से भी यही आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों इसका चिंता मत करिए. हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात किया है, वो थोड़ा समय लेता ज़रूर है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे बोल के उन्होंने बात रखा है. So this is one information to the teachers of the LP schools of the council. Though still there are 600 number of teachers, उन लोग को जो confusion है वो confusion नहीं होने के लिए, and इस teachers day में आप लोगों को ये शुभ समाचार बोल सकते हैं. Another thing, और कल जब हमारा कैबिनेट हुआ था लखीमपुर में, वहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, वो this is a very important not only for the teachers but for the whole community of government employees. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सुरक्षा के लिए हमारा सरकार ने एक स्टेप लिया है. इट इज़ एन इंश्योरेंस स्टेप. ये इंश्योरेंस है, इफ़ यू आर सपोज इफ देयर इज़ एन एक्सीडेंटल केस ऑफ एनी एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, तो उनको 1 करोड़ दिया जाएगा. अगर देयर इज़ अ डिसेबिलिटी, अगर हो गया है एक्सीडेंट के बाद में, then also you will be getting a 1 crore. If there is a partial disability, then you will be getting 80 lakhs. So this is a very good step which the government of Assam has taken it. कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा एम्प्लॉयज़ लोग को अगर एक्सीडेंट आ जाता है तो इंश्योरेंस अगर लेता है तो एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कैसे करके होना है. लेकिन असम सरकार ने एक्सीडेंशियल केसेस के लिए कल हमारा कैबिनेट में घोषित हो गया है. इसलिए आई एम गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम दैट जितने नौकरी कर रहा है उन लोग को अगर एक्सीडेंशियल केसेस हुआ है तो असम सरकार का तरफ से इट इज़ नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ द पोस्ट माइनिंग. आपका 4th ग्रेड को भी वही मिलेगा जो हमारा IAS ऑफिसर का है, आपका 3rd ग्रेड को भी वही मिलेगा जो हमारा ACS ऑफिसर को है. तो यहाँ में कोई पे बैंड से मतलब नहीं है, ये सिर्फ असम सरकार का एम्प्लॉय होना चाहिए. दिस इज़ वन गुड न्यूज़. अनदर गुड न्यूज़ इज जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स था हमारा सरकार का अंदर में सिंस 2012,
जो सर्व शिक्षा का अंदर में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बहुत लोग था, somewhere around 25,000 of contractual teachers on 2nd of September has been already regularized. आप लोग का बीच में भी हो सकता है वो सब टीचर्स लोग जिन्होंने अप्लाई किया है कि आपको रेगुलर टीचर बनना है अंडर द टर्म्स ऑफ सर्व शिक्षा जो 2012 से लेके हुआ था, 2017 में भी हुआ था, वो सब रेगुलराइज कर दिया है. सो अ टोटल ऑफ 25,000 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ऑफ टेट अंडर द सर्व शिक्षा इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रेगुलर. उनको डिसीजन हुआ है एक्सीडेंटल केसेस का, उनको भी वही सुविधा मिलेगा जो सभी रेगुलर को मिल रहा है. So this is a very good education step which has been taken up by the government of Assam. Besides this, what we as an MLA are doing it for the district in terms of education, scholarship. I'll just like to inform to the house. Scholarship के लिए हम लोग students के लिए council तो दे ही रहा है, तभी भी in terms of an MLA और हमारा मुख्यमंत्री का तरफ से हम लोग चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड बोल के मिलता है. इस चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में हमने दो पार्ट में रखा है. एक पार्ट हमने रखा है जिसका डिजीजेस एलिमेंट्स होता है और एक पार्ट रखा है हमने स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स. सो स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स इज अवेलेबल. आपको एक फॉर्म भरना है और इस फॉर्म भरने से ही आपको अवेलेबल हो जाता है. डिपेंडिंग ऑन दी एजुकेशन आप लेना चाहता है, जो एजुकेशन अगर आप MBBS करना है, अगर आपको टेक्निकल लाइन में जाना है या आपको जनरल लाइन में भी जाना है, वो सब देखने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है. सो दिस स्कॉलरशिप वी हैव बीन गिविंग इट फॉर द लास्ट 4 years. दिस ईयर ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग इट. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट कि ऑल द टीचर्स कंसर्न kindly pass this message to your students who are from a very poor family, or even if they are not from a poor family, they want a help from the government. We are always there to help it in terms of a scholarship. Another one important thing that the government of Assam had done it was to the students, especially to the girls. Those studying in private schools are not eligible. I am sorry for that. But at the same time, those studying in government schools are eligible. And the name of the scheme is known as Nijut Moina, Chief Minister's scheme. The word Nijut Moina, when you hear it, it must be a confusing one, but it is not to be confused. Honorable Chief Minister keeps it a vision that there will be a 10 lakh number of students to be given Nijut Moina to all the girl students. Those who are studying in high secondary first year, those who are studying in graduation, and those who will be studying in post graduation also. मेरा दरख्वास्त है सभी स्टूडेंट्स यहाँ जितने लोग भी आए हैं, आप जब पढ़ेंगे आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएंगे. ये स्कॉलरशिप इस साल से स्टार्ट हुआ है और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएंगे आपका अकाउंट में 10 तारीख का अक्टूबर से. 10 तारीख का अक्टूबर से आपको हमेशा जिन्होंने भी अप्लाई किया है उसको 10,000 करके मिलेंगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन जो हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर में है उनको इस साल नहीं मिलेंगे. जो फर्स्ट ईयर इस साल एडमिशन लिया है उनको कंटिन्यू होते जाएंगे. सेम एज द केस इन डिग्री में जिसका फर्स्ट ईयर हुआ है उनको 10,000 मिलेंगे. जो डिग्री सेकेंड ईयर में पढ़ता है उनको नहीं मिलेगा और डिग्री थर्ड ईयर में जो पढ़ता है उनको भी नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप डिग्री खत्म कर लिया है और आपको पीजी करना है तो सरकार की तरफ से यू विल बी गेटिंग 25,000 and for graduation you are getting 15,000 and for higher secondary you are getting 10,000. So the slab of the amount is 10,000, 15,000, 25,000. and कैसे मिलना है आपको? हायर सेकेंडरी में 10,000 मिलना है, आपका ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 15,000 मिलना है और आपका पीजी करने के लिए आपको 25,000 मिलना है. लेकिन सरकार ने बोला है कि अगर आप दिस इज अ वेरी पर्पस, ठीक है, ये हम बताने के बाद में आपको बताएंगे कि सरकार ने बताया है कि अगर आपको ये 10,000, 15,000 और 25,000 मिलना है तो लड़की लोग को स्पेशली आपको शादी करना मना है इन फर्स्ट 2 टर्म्स, दैट इज इन हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर एंड ग्रेजुएशन. क्यों ये स्कीम लेके आया है मुख्यमंत्री ने देखा है कि चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द वेरी इवल कॉज दैट इज अपलिफ्टिंग इन द सोसाइटी. और ये सोसाइटी में बंद करने के लिए मोर एजुकेशन गिवन टू दी यंगर चिल्ड्रन को देने के लिए सरकार ने रखा है कि निजित मोइना स्कीम ऑफ 10,000 एंड 15,000 फॉर दी हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन. जिन्होंने भी शादी कर चुका है और शादी करने का मन है
तो सरकार उनको पैसा ये 10,000 और 15,000 नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको पीजी करना है और आप शादीशुदा हो जाएंगे तब तो आपको देना है। So there is again an alternative. So 10,000 and 15,000 you are not getting if you are not married. If you are married, you are not getting. And for 25,000 for a PG section, we are giving it 25, provided that you can be eligible for a marriage and you can marry. So this is what the system of the government is going towards your house. सबका घर में पहुंचता है और सबका घर में पहुंचने के बाद में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए तो कब से everything is free, education is free under the government policy. But Assam Sarkar has given specifically to the girls, saying that more education to be given to girls, more education empowerment to be given to girls. And my request is that जितने भी यहाँ students हैं, sorry to the boys, but जितने भी students हैं from the girls can higher and higher. हमारा district में एक बात ड्रॉबैक है और वही ड्रॉबैक पॉजिटिव है। हमारा ड्रॉबैक ये है कि हमारा सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है इन द होल एंटायर डिस्ट्रिक्ट, और जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। दिस आर ऑल बीइंग रन इन प्राइवेटली। लेकिन दिस वेरी गवर्नमेंट कॉलेज विच इज अ सिंगल कॉलेज इज गिविंग अ ह्यूमन रिसोर्स इन ह्यूमरस नंबर्स. And I am sure that everybody will agree. Over here I can see so many faces. I was telling to Rebecca only, the moment we are sitting here, and then if we try to see our faces over there, we see all Ignatians. Others don't take it otherwise, but I have seen it, so I have said it. We have seen from here, many of the Ignatians are seated there because we feel that you have become a teacher and then you have come up with a very cause and then seated here to bring another good cause. Abhi aise jab we are seeing it, in this higher education that I am saying it, in one government college it is only there, but this government college is for others it might be a drawback, but to utilize in a very good college you will find it even in the rest of the colleges. There are so many colleges in Assam, I am entitled to visit so many colleges, I am visiting so many colleges, but the way that we have got an education from the ground rooted education that we have got in Haflong, and the way that we have got the rooted education in Haflong Government College, you will not be getting it anywhere, mind it, you will not be getting it anywhere. So the way that we are getting all, I'm not talking of only my school in Haflong when I said. In Haflong there are so many schools, be it your private schools, be it your government schools, the way that we are getting an education is far, far better than what others are getting it, provided that we are from a very, very downtrodden backward district. So keep it always in your mind. Whenever there is a negativity, a positivity will always come. Whenever there is a sunset, there will always be a sunrise. So whenever you think that Haflong Government College is the only college that we will be able to study, at the same time make it an assurance that this is the only college that we will take it up to the next level. चीफ मिनिस्टर प्यार करके माया करके जो हेड टीचर था 152 था दिमा हाथों से, तो उसको भी रेगुलर करा दिया है। और भी हायर सेकेंडरी का जितना भी टीचर होगा उसको भी चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ करेगा। और हम लोग भी काउंसिल का नॉर्मल हो नॉन प्लान का हो, उसका सैलरी का इश्यू हम लोग सॉल्व करा दिया है। तो इसीलिए हम लोग सब मिलजुल के सरकार का तरफ से अपना काम हो रहा है और टीचर लोग भी अपना अपना काम करना है हमारे हिसाब से, क्योंकि दुनिया में सब लोग मेहमान है, लेकिन आप लोग का मेहमान होने टाइम में समाज को देश को सेवा करने के लिए आप लोग का मौका दिया गया है। जितना भी पॉलिटिकल लीडर लोग समाज को अच्छा करने के लिए सोचो, लेकिन अगर टीचिंग अच्छा से बच्चा लोग शिक्षा अच्छा से नहीं मिलेगा कभी भी आगे बढ़ने नहीं सकेगा। तो इसलिए टीचिंग क्वालिटी ऐसा होना है कि अमुक स्कूल में जाने से मेरा बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है होने से भी डिसिप्लिन तो सीख के आएगा, अपना माँ बाप से, अपना बुजुर्ग लोग से, अपना सीनियर से कैसा बातचीत करेगा, अपना देश को प्यार करेगा, अपना लाइफ में कैसे जिएगा, वो तो सीख के आएगा। वो क्वालिटी लाना है हम लोग। फॉरेन कंट्री में आप लोग देखिए, अलग अलग स्टेट में देखिए, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करना है, सीखना है, साथ ही साथ मेरा हिसाब से देश का माया, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, साफ सुथरा कैसा रहना है वो भी हम लोग स्कूल में करना है। और कभी कभी स्कूल में महीना में एक बार पेरेंट्स मीटिंग बुलाना है। खाली प्राइवेट स्कूल में बुलाने से नहीं होगा। हम प्राइवेट स्कूल को अगेंस्ट नहीं करता है, लेकिन
सरकारी स्कूल में भी पेरेंट्स लोगों को बुला के मीटिंग करना है। आपका बेटा स्कूल अटेंडेंस कम हो रहा है, आपका बेटा थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होता है, आपका बेटा थोड़ा बदमाशी हो रहा है, वो सब चीज पेरेंट्स मीटिंग होना है हमारा हिसाब से। तो हाँ, हम लोग भी कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाता तो हम लोग भी बेटा बेटी को पूछता है आप कुछ तो गलती तो नहीं करा, नहीं तो हम लोग सबको सामने में शर्म खाएगा, ऐसा नहीं होना है बेटा बेटी, हम लोग भी कुछ भी बोलता है। तो ऐसा माफी हम लोग लाना है। कल फाउंडेशन डे था हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज, हम पूछा है वहाँ का प्रिंसिपल का भी, आप लोग पेरेंट्स मीटिंग बुलाता कि नहीं बुलाता? नहीं बुलाता बोलता है। तो ऐसा नहीं होना है। सरकारी स्कूल को अगर हम लोग ऐसा माफी छोड़ के रख देगा, इन फ्यूचर में आप लोग को आने वाला जेनरेशन के लिए बहुत तकलीफ होगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत सारा बोलता है। अभी देखिए एमई स्कूल हाई स्कूल का टीचर और स्टूडेंट को रेशियो में देखो, स्टूडेंट कितना है टीचर कितना है, उसमें छुपाने वाला कुछ नहीं। आजकल ऑनलाइन है। बात को बात एमई स्कूल टीचर हम लोग मांगने से स्टूडेंट कितना है वहां पे, स्टूडेंट होने से 2-3, टीचर 6-5। उसका कारण क्या है? वो अकेला हम चलाने से भी नहीं होगा और आप लोग भी साथ में होने लगेगा और एक साथ मिलकर हम लोग काम करने पड़ेगा। अभी देखिए एलपी टीचर दिमा हासों में 1400 प्लस सेक्शन पोस्ट है। उसका बाद में एमई स्कूल में भी है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कॉलेज में भी है। अगर सरकारी स्कूल में स्टूडेंट ही नहीं होगा तो सरकार बाद में कैसे हम लोग का अपॉइंटमेंट बाय एसआईयू कैसे देगा? अगर गाड़ी होगा तो ड्राइवर होगा ना, गाड़ी ही नहीं तो ड्राइवर देखे क्या करेगा? ये भी आप लोग सोचना है। हाँ, ये भी हम लोग काम करना है। आप लोग नौकरी किया है, रिटायर हो गया है, अभी प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट भी नौकरी कर रहा है, हम अटेंडेंस देने से हो गया, वेतन मिलने से हो गया, ये सोचने से नहीं होगा। हम लोग का देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गांव टाउन पूरा सिटी में हम लोग का स्कूल एटलीस्ट, मेरा सोच विचार, स्कूल फ्री ऑफ मिलना है, फ्री मिलना है बच्चा लोगों को पढ़ाने में। हम लोग ये फीलिंग लाना है दिमा हासों में, जो भी स्कूल में पढ़ाने से हमारा बेटा बेटी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, अच्छा परसेंटेज लेके आएगा, वो फीलिंग में हम लोग, वो सोच विचार में हम लोग लाना है। नहीं तो हम लोग का बहुत तकलीफ होगा इन फ्यूचर में। क्योंकि देखिए स्कूल अगर खराब हो जाएगा गांव भी उठ जाता है। कारण क्या है? नंबर 1, सब लोग भी अपना बेटा बेटी को कोई भी खराब इंसान मानो नहीं सोचता है। सब लोग भी, भिखारी का आदमी भी, करोड़पति का लोग भी अपना लड़का लड़की को, अपना बेटा बेटी को अच्छा इंसान मानो सोचता है। लेकिन क्या में रह जाता है? हम लोगों का कुछ सिस्टम में रह जाता है। इसलिए गांव नागालैंड बॉर्डर, मणिपुर बॉर्डर, मेघालय बॉर्डर में क्या होता, वहां पे स्कूल ठीक नहीं होगा, थोड़ा इनकम होगा, हम भी हपलों आएगा, माहौर में आएगा, तो इश्यू हो जाता है। हम भी सोचता है कि हमारा बेटा बेटी को हम पूरा खाना खमती खा के हम बेटा बेटी को पढ़ाएगा, हम भी सोचता है, सब लोग भी सोचता है, राइट भी है। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, अगर स्कूल खराब हो जाएगा गांव उठ जाएगा, गांव उठ जाएगा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट छोटा छोटा होते जाएगा। नागालैंड से कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर मणिपुर से हो जाएगा, फिर मेघालय से हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सब लोग अपना ड्यूटी करना है, आप लोग नाराज नहीं होना है। 1-2 ट्रांसफर करने से भी फिर हम लोग का ऊपर में नाराज हो जाता है। अरे हम लोग का देश, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, हम लोग अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ में कोई पाकिस्तान से आके तो टीचिंग नहीं करेगा, कोई बांग्लादेश से तो आके टीचिंग नहीं करेगा, हम लोग ही करने पड़ेगा ना। और हम लोग सब लोग हपलों में सब बच्चा लोग को पढ़ाने से भी नहीं होगा। सब दिमा हासों में जो स्कूल है वो भी अच्छा होना पड़ेगा। उसके लिए अभी डेवलपमेंट का इश्यू में, पहले खरेन नहीं था, अभी खरेन भी आगे बढ़ रहा है। पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मोबाइल नेटवर्क भी बढ़ रहा है। पहले रास्ता नहीं था, अभी रास्ता भी बन रहा है। हाँ, हम ये नहीं बोलते पूरा रास्ता बन गया, लेकिन बन रहा है, स्पीड से हो रहा है। तो इसलिए आप लोग काइंडली रिक्वेस्ट करता, क्योंकि आप लोग को 1-2 हम क्वेश्चन पूछने से आप लोग
धर्म खिलाया ऐसे हो जाएगा। बेस्ट अवार्ड टीचर देता है, लेकिन अपना स्कूल में अपना बेटा बेटी को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सरकारी स्कूल में बात का बात। यहाँ पे कोई है टीचर लोग अपना स्कूल में अपना बेटा बेटी को पढ़ाने वाला? हाथ है ना, खड़ा करो। अभी है उसका रेबिका जी, उसको अवार्ड देना है। ये देता है अपना स्कूल अच्छा है बोल के लाइसेंस देता है, बाकी सब टीचर लोग स्कूल खराब है बोल के लाइसेंस देता है आप लोग, क्योंकि अपना लड़का लड़की को तो सब भी अच्छा स्कूल में पढ़ाने मांगता है कि नहीं? इवन हम लोग भी लाइसेंस देता है अभी गवर्नमेंट में, सरकार में बैठने वाला, हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता अपना बेटी बेटी को। बात का बात 5 साल बाद में हम लोग सब भी CM, EM, मिनिस्टर, MLA बा टीचर भी अपना स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में बा अपना जहाँ पे टीचिंग कराया वहाँ पे पढ़ाने के लिए लायक बनाना है हम लोग उनका, तो तब हम लोग आगे बढ़ेगा। हाँ, इसके लिए हम लोग फुल स्विंग लग रहा है। अभी जो टीचिंग लगभग हम लोग 600 अभी अपॉइंटमेंट देगा, उसमें भी हम लोग जेन्युइन देगा, मेरे हिसाब से देगा, पॉलिटिकली अपॉइंट नहीं करेगा। टीचर में मेडिकल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हम लोग। अगर बच्चा लोग देश का अच्छा अगर बनेगा, अगर आप लोग देश के लिए सेवा करेगा, खाली जम्मू एंड कश्मीर में जाके बंदूक लेके आर्मी पुलिस बनने से देश के लिए काम करता है तो नहीं है। अगर देश में जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी बनेगा तब भी आप लोग फौरन से आदमी बनेगा। हाँ, इसलिए देश का सेवा करने वाला नंबर 1 टीचर लोग है। देश को अच्छा करने के लिए नंबर 1 ड्यूटी टीचर लोग है, अपना माई बाप लोग भी है। हाँ, तो ये अगर ठीक हो जाएगा हम लोग का आस्ते 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 आगे बढ़ते जाएगा। हाँ, अगर टीचिंग क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आधा आधी रह जाएगा। और हम लोग स्कूल में हम लोग सिखाना है जात पात धर्म सब छोड़ देना है। दुनिया में रहने के लिए यही हम लोग उनका धर्म है, यही हम लोग से आगे बढ़ेगा, ये सोच के हम लोग टीचिंग ड्यूटी करना है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन टीचिंग में वो नहीं लाना है। लेकिन हिंदू लोगों के लिए मंदिर हम लोग का स्कूल है, क्रिश्चियन भाई लोगों के लिए चर्च स्कूल ही चर्च है, मुस्लिम लोगों के लिए वही मौजूद है, सोच के हम लोग काम करना है, तब हम लोग अच्छा इंसान बनेगा। और हम लोग भारत का देश खराब है बोल के गाली देने से नहीं होगा। सब लोग भी अपना अपना ड्यूटी करने पड़ेगा। स्कूल में भी पियोन से लेकर प्रिंसिपल भी अपना ड्यूटी करने पड़ेगा। हाँ, खाली प्राइम मिनिस्टर, खाली चीफ मिनिस्टर, खाली CM, EM, MLA को गाली देने से नहीं होगा। सब भी अपना ड्यूटी करने से हम लोग का सिस्टम, संविधान, नियम इतना अच्छा से बना के गया है, लेकिन काम नहीं करने वाला हम लोग ही करता है। हाँ, अभी डॉक्टर S राधाकृष्ण ने इतना सोच के हम लोग के लिए काम करके किया है, तो हम लोग भी करना है। हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं और आप लोग भी अपना ड्यूटी करना है। सरकार का तरफ से जो भी मदद मिलेगा, जो भी काम करेगा, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करता है अभी। और टीचर के लिए, टीचिंग के लिए आप लोग मालूम है, वो कांग्रेस रहते टाइम में भी 2012-13 में हेड टीचर लेके आया। एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। और अभी अपना सरकार आके अपना चीफ मिनिस्टर बन के वो हम आशा करता जितना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है उसको भी रेगुलर कराएगा हमारा हिसाब में। तो अभी भी है हायर सेकेंडरी का, तो इसलिए हम लोग ऐसा मौका में दिमा हसाओ को भी आगे लेके जाना है, आसाम को भी आगे लेके जाना है। पूरा देश में हम लोग का स्टेट, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट टॉप 5 में लेके जाने में, हिमंत बिश्व शर्मा जी लेके जाने में हम लोग भी पीछे पीछे जाना है। हाँ, अभी देखिए दिमा हसाओ में शांति है, डेवलपमेंट हो रहा है, और टीचर लोगों का कुछ भी इश्यू होता है तो हम लोग भी साथ में हैं। हाँ, अगर आप लोग गांव-गांव में जाने में कुछ बहाना लेके अगर सब लोग आ जाएगा तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 1-2 आदमी इंसान बनने से वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपका बेटा बेटी ऑफिसर बन गया, लेकिन बाकी का बेटा बेटी कुछ भी इंसान ही नहीं बना, तो आपका बेटा बेटी भी देश को छोड़ के, गांव को छोड़ के बाहर में जाने पड़ेगा, शादी उदी सब बाहर में चला जाने लगेगा। तो इसलिए हम लोग पूरा
समाज को अगर ठीक करेगा, देश आगे बढ़ेगा। नंबर 1 क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए हम लोग उनका। और एजुकेशन का क्राइसिस, एजुकेशन का पढ़ने में प्रॉब्लम हम लोग खुद होके आया है। हाँ, हम इतना उम्र तो नहीं हुआ है। और जब हम लोग हायर सेकेंडरी में माईबाग में पढ़ाई करता रहा, क्लास 11-12 में पढ़ने में, अभी भी मुझे याद है उस टाइम का टीचर को बहुत याद कर, मैंने अच्छा वाला और खराब वाला को भी याद करता है। जब हम लोग एग्जाम देता रहा, अमुक टीचर गिरने से हम लोग का एग्जाम अच्छा होता है, ये वाला फीलिंग में आता रहा। लेकिन वो टीचर को अभी गुस्सा होता है हम लोग, और अमुक टीचर गिरने से हम लोग का एग्जाम खराब है। उस टाइम में क्या होता रहा? टीचिंग स्ट्रिक्ट नहीं था। बुद्धेश्वर पदो मर गया है, हम लोग का प्रिंसिपल बहुत कोशिश किया था स्कूल क्वालिटी अच्छा करने के लिए, लेकिन उस टाइम का टीचर लोगों को अच्छा पाने वाला हम लोग स्टूडेंट का समय में अभी दिल से नाराज करता है। ऐसा वाला टीचर जिंदगी में नहीं होना चाहिए, हम लोग फीलिंग होता है अभी। हाँ, तो ऐसा माफी हम लोग नहीं करना है। अपना ड्यूटी है, अपना देश है, अपना बच्चा है। हाँ, हम सरकार का तनख्वाह ले रहा है अपना ड्यूटी के लिए, तो वो ड्यूटी करने पड़ेगा। सब लोग भी मेहमान है, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। उस टाइम में टीचर लोग मिला है नौकरी, आप लोग सेवा करने के लिए मिला, सेवा करो। कुछ स्कूल में हम विजिट करता है, कुछ स्कूल में ड्यूटी भी अच्छा करता है, ये नहीं है पूरा आप लोग को गाली देता है, ये नहीं सोचना है। आप लोग आगे बढ़ना है, उसके लिए हम है और देश आगे बढ़ना है। तो इसलिए आप लोग का फिर से मैं धन्यवाद देता है। दिमा हासाओ को आसाम का बीच में खराब से अच्छा चीज में टॉप 5 में लेके आया, और आने वाला दिन में भी वो नंबर अच्छा चीज वाला हासिल करने में आप लोग की जरूरी है। आप लोग का बेटा बेटी, आप लोग पढ़ाने वाला बेटा बेटी जॉब भी मिलना है, नौकरी भी मिलना है। मेडिकल कॉलेज भी आएगा, उमरांचो में टूरिज्म भी बढ़ रहा है, हफलों में भी टूरिज्म बढ़ रहा है, होटल भी अच्छा आएगा। उसका बाद में पावर प्रोजेक्ट भी, लुंगू प्रोजेक्ट में आएगा, 1-2 सीमेंट फैक्ट्री भी आएगा। तो आप लोग पढ़ाने से उस सब में नौकरी मिल सकेगा हम लोग। तो ये चीज हम लोग करना है, सब मिलजुल के। मोदी जी अकेला नहीं सकेगा, हेमंत जी अकेला नहीं सकेगा, नंदिता डबलोसा अकेला नहीं सकेगा, देवलाल डबलोसा अकेला नहीं सकेगा, आप लोग का ईएम अकेला नहीं सकेगा। सबका अपना ड्यूटी बनना है, और हम पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। पहले टीचर लोगों का सैलरी का इश्यू था, पहले रहने का क्वार्टर नहीं था, पहले रास्ता भी कम था, पहले मोबाइल टावर भी नहीं था, पहले करंट का भी इश्यू था, पहले पानी का भी इश्यू था। अभी पानी का सारा प्रॉब्लम भी आस्ते आस्ते हो रहा, क्योंकि दिमा हासाओ पहले काम जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग भी काम करने में थोड़ा समय लग गया है। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं किया, ऐसे बोल नहीं सकता है दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को। तो इसलिए हम सब लोग एक साथ मिलके गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा और भी करना है, प्राइवेट स्कूल को खराब करना है हम नहीं बोलता है। अगर प्राइवेट स्कूल आगे खराब गवर्नमेंट चलाने में अगर नहीं होता रहा, ऑक्सीजन जैसा प्राइवेट स्कूल से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को बचा के रखा है। अभी देखिए आने वाला दिन में हम लोग ऐसा लाना है। अभी हाफलोंग में हम लोग बहुत लोग हम लोग का गाली दिया। हाफलोंग में गोपीनाथ बरदलोई एलपी स्कूल को सबसे अच्छा स्कूल बनाएगा। अभी बिल्डिंग 3 ताला का हम लोग बना रहे हैं। जीसी लांकासा हाई स्कूल एक साथ वहाँ पे करके हम लोग ज्वाइंटली बनाएगा। माईबाग में थादानाम खिरसा एलपी स्कूल एमई स्कूल ज्वाइंटली हम लोग बनाया है। माईबाग हायर सेकेंडरी में भी अभी बन रहा है, अभी हरगदाव में भी बन रहा है, जुमरा में बन गया ऑलरेडी। अभी कॉलेज भी जुमरा लेंस उमरांचो एक बनेगा, और हम लोग का कॉलेज भी ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएगा। डॉक्टर रनोज पिगू जी एजुकेशन मिनिस्टर भी बोला है। तो ऐसा माफी सिस्टम आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा, और अभी पढ़ाने के लिए बहुत सारा मदद मिलता है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन होने से 20,000 सीएम रिलीफ फंड से, फिर चीफ मिनिस्टर से, फिर एमएलए स्कीम से, फिर निजुत महीना स्कीम। ऐसा वाला मौका कहाँ मिलेगा, ऐसा वाला समय कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए अभी देश को, समाज को, गरीब फैमिली को आगे लेके जाने में अभी ठीक मौका है। मोदी जी है, हेमंत जी है, हम लोग सब लोग भी काम करने मांगता। स्कूल में कोई कम्युनल फीलिंग नहीं लाना है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है, स्पोर्ट्स में एक साथ करना है हम लोग। इसलिए स्पोर्ट्स में भी देखिए 23 अभी ग्राउंड बन रहा है दिमा हासाओ में। क्रिकेट स्टेडियम 3 बन रहा है। हम लोग का उमरांशु, हम लोगों का लांटिंग, हम लोग का माईबाग क्रिकेट स्टेडियम 3 बन रहा है।
बाकी स्पोर्ट्स ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है अभी, तो उस समय लड़का बच्चा भी हम लोग का फिजिकल फिटनेस भी ठीक रहेगा। एनी टाइम मोबाइल आजकल बच्चा लोग देखते रहता है, उसका बाद में टाइम टेबल मेंटेन करना है आप लोग। हाँ, स्कूल में अटेंडेंस ठीक करना है, हम बार बार बोलता है, और पेरेंट्स मीटिंग बुलाना है, और गाली उली भी देना है, और स्ट्रिक्ट भी होना है। एक दो टीचर लोग और एक दो स्टूडेंट लोग टीचर को गाली उली देगा, लेकिन बाद में याद आएगा, हम जैसे याद आता वो अच्छा टीचर थे, वो याद करेगा। लेकिन अभी आप लोग पूरा ढीला छोड़ देगा तो वो टीचर लोगों को हम जैसे अभी वो टीचर को गिन करता है, देखने ही दिल नहीं है, ऐसा माफी वो लोग भी फिर गिन आएगा स्टूडेंट लोग। हाँ, नाम बोलने नहीं चाहता टीचर को, लेकिन सीनियर टीचर है, जो भी हो टीचर तो टीचर है। तो इसलिए आप लोग सब लोग मिलजुल के डिमा हासाओ को आगे लेके जाएगा बोल के मैं विश्वास हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लेके सबको टीचर्स डे को शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता, कुछ भी इश्यू होता, डायरेक्ट फोन करो, लेकिन ट्रांसफर के लिए हमको फोन मत करो। हाँ, सीधा सीधे बोलता है, हम ये को इंचार्ज देके रखा है। हाँ, ट्रांसफर सब स्कूल में आई जाने से आप लोग में आएगा, मायरों में आएगा, तो गाँव में कौन बैठेगा। हाँ, तो उसके लिए हमको माफ करो। बाकी कुछ इश्यू, कुछ प्रॉब्लम हम हैं आप लोगों के साथ में। टीचर के लिए हम लोग रिशफल करेगा, एक साथ में एक जगह में 3 साल नहीं रहेगा। खाली टीचर का बात नहीं है, काउंसिल का ऑफिसर को भी आज में इसी में डिसीजन लिया है हम लोग। 3 साल होने से सब जानने के लिए रिशफल करेगा हम लोग। अभी नया टीचर को भी रिमोट एरिया में भी बैठना है, और वो लोग को सिखाना है, चेंज कराना है। हाँ, तो इसलिए हम लोग सब लोग, अगर स्कूल अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी आगे बढ़ जाएगा। हम लोग का स्कूल व कॉलेज का खर्चा से बहुत सारा पैसा हम लोग उनका सिस्टम में माने इकोनॉमिक डाउन हो जाता है। अगर क्लास 1 से क्लास 10 तक 1 रुपया भी खर्चा नहीं करके पढ़ाने सकने से हम लोग का वो पैसा सेविंग करके मैट्रिक हायर सेकेंडरी पास होने का बाद में अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी में दे सकता रहा हम लोग। आप लोग सब क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सरकार से हेमंत जी से सिस्टम बनाया है, ये होना है, एमएससी पास होना है, बीएड होना है, टेट होना है, लेकिन सिस्टम, डिसिप्लिन, प्यार, माया, वो हम लोग और भी करना है। हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को हम अगेंस्ट नहीं बोलता, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर लोग हैं उससे क्वालिटी हम लोग का सरकारी स्कूल का टीचिंग क्वालिटी अच्छा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का क्या है, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, अच्छा मैनेजमेंट, वो अच्छा है। और इसलिए हम कल में भी बातचीत किया है, आप लोग का स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग क्वालिटी अच्छा होने के लिए एक ट्रेनिंग हम लोग शुरू कराएगा, शायद इंडिया में हो, शायद फॉरेन कंट्री में हो, हम लोग वो कराएगा टीचिंग सिस्टम जैसे। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेगा। बाहर का देश का लड़का बेटा बेटी जैसा हम लोग देश को प्यार करता, देश को अच्छा लगता, ये हम लोग अच्छा लाना है। हाँ, हम लोग का देश में क्या होता है, हिंदू होने से हिंदू के लिए काम करेगा, मुस्लिम होने से मुस्लिम के लिए काम करेगा, क्रिश्चियन होने से क्रिश्चियन के लिए काम करेगा, वो ज्यादा डूब जाता है। लेकिन देश को कौन अच्छा करेगा, देश के लिए आगे लेके जाना है, वो फीलिंग भी हम लोग लाना है। लाना कि नहीं लाना है, वो कौन लाएगा, हम लोग आप लोग लाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए एक साथ मिलजुल के देश को आगे बढ़ के लेके जाएगा बोल के मैं विश्वास है। और डिमा हासाओ असम का बीच में टॉप 5 में अच्छा इसमें मिल रहा है एजुकेशन साइड में भी, और इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के छोटा सा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू जुटाई। Respected all the dignitaries on the dais of the dais, retired teachers, students, and all present here. At the beginning, I would like to convey my heartfelt gratitude and thanks to all the teachers on this auspicious Teachers' Day. It's because of the teachers that we are here, we are standing here, those who are on the dais, except for, I think, one, or maybe he's also not a teacher, he's additional director education. So we are sitting here because it's because of you who have guided us and molded us through our life. I am very grateful to all the teachers who have taught me, all the teachers who are teaching now, all the teachers of the teachers also who have produced such a lovely teachers who have again taught us to become a good human being, and I think at least taught us to become a good human being. Whether we became one or not, it's a different story. So, as I
I went to two schools, and in both the schools, the color of the uniform was white and blue. White for boys, it was white shirt and blue pants. And as I was sitting there, I realized that I'm wearing black and blue and white today. So it was purely a coincidence, and I think I'm well dressed today to thank my teachers who have taught me, though they are not here, except for Renu ma'am. She, as I was leaving the college way back in 1989, if I'm not mistaken. So thank you, teachers, for the work you all have done and you all are doing. You all are doing a remarkable job. Last year in the Gunotsav, though our rank slipped by I think 4 or 5 points, but in terms of performance we did better. There were lesser D grade schools and more A plus grade schools, so that's an achievement. In the metric examination also, we slipped by 1 point. We were ranked third, but having said that, our performance increased by 6%. So likewise in higher secondary also we did well. In the college also we are doing well. So it's all because of the contribution of the teachers especially. So I thank you all very much. And to all the teachers, but still I'll have to say a few things also, especially government teachers. We need to work harder because we need to prove that our schools are as good as the private schools. And for that, we need to increase our enrollment. Just now, our Honorable CM sir had said that the ratio of our teacher-pupil ratio is very low. And I do not want to say, but I'll say, in the ME level, it's just one teacher for 3.5 students, which is very low. Perhaps, maybe I wouldn't be surprised if it's the lowest anywhere in India or anywhere in the world also, because countries like Norway and Japan and all, they have a ratio of 1:16 students. And at the LP level also, we have a ratio of just about one teacher for every 7 students. So this is very bad. We need to encourage, teachers need to go out and encourage, reach out to the parents, reach out to the villagers, and encourage them to come to government schools. In government schools, we give everything for free, including midday meal, and books and uniforms are also there. So, and when you take into totality, you'll see to it that what we spend on our children in the government schools is much more than most of the parents over here also spend on their wards in any of the Mahasal's private schools. So that is what we spend for them. So this should not go on waste. We did well. We are third in metric examination. We should be first. Our ranking was somewhere, I think, 28 in the Gunotsav, and we should not be below 10. We have our hindrances, we have our obstacles. But having said that, I request all the teachers to, you all are doing a good job. That's why our performance is getting better with every passing year. But I would still request you all to work harder, and to the students also. I congratulate you for having such lovely teachers, and please do study hard, listen to them, and bring colors to the nation. I stood up over here to say only a few words, and I think the meeting has also been a very long meeting. So with these few words, I'll conclude my speech. Thank you very much.
you.